لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا یہ کیس ہے۔ الیکشن کمیشن نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی استدعا بھی کر دی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے حسیب ملک۔ حسیب بتائیے گا، الیکشن کمیشن نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ تھا، لیول پلینگ فیلڈ کیس ہے جس کے اندر یہ درخواست دائر کی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی۔ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کے جو الزامات ہیں ان کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کرنے کی بھی استدعا کی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی جو رپورٹ جمع کروائی ہے، جواب جمع کروایا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں تحریک انصاف کو بلا تفریق لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے چاروں صوبوں کے آئی جیز کو ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں۔ 26 دسمبر تک تحریک انصاف کی جانب سے ملک بھر میں 33 شکایات درج کروائی گئی تھیں اور تحریک انصاف کی شکایات پر اقدامات، ہدایات کے ساتھ اور تفصیلات بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہیں۔ تحریک انصاف کی شکایات پر آئی جی اور چیف سیکرٹری اور آروز نے عمل درآمد رپورٹ بھی جمع کروائی ہیں اور لیول پلینگ فراہم نہ کرنے کے الزامات کو آروز کی رپورٹ کے تناظر میں مسترد کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو جواب جمع کروایا گیا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے اور باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو جواب جمع کروایا گیا ہے اس میں ڈیٹا بھی فراہم کیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈیٹے کے مطابق تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کی 843 میں سے 598 کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں اور تحریک انصاف کے 245 کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ کاغذات نامزدگی مسترد بھی کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے حسیب، بہت شکریہ آپ کا۔ عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کے لیے نئی قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے، جبکہ دوسری جانب الیکشن کے التوا کے لیے سینٹ میں منظور شدہ قرارداد کی کاپی الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئی ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے قرارداد پر غور کے لیے اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ تفصیل کے لیے اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ 8 فروری کے عام انتخابات مقررہ وقت پر کروانے کی قرارداد سینٹ میں جمع کروا دی گئی۔ الیکشن کے التوا کے لیے قرارداد کی کاپی الیکشن کمیشن کو موصول۔ سپریم کورٹ میں چیئرمین سینٹ اور سینٹ اراکین کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی جمع۔ سینیٹر مشتاق احمد کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کا انعقاد دستوری تقاضا ہے۔ دستور کے مطابق انتخابات بر وقت کرائے جائیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے۔ امن و امان اور خراب موسم کی صورتحال کو بنیاد بنا کر انتخابات کے التوا کی قرارداد غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے۔ قرارداد کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ سینٹ آف پاکستان کو ماورائے آئین کسی اقدام کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ رائے کے مطابق الیکشن کے التوا کی قرارداد کی نقول موصول ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے قرارداد کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں قرارداد کے قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کو دی گئی توہین عدالت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سینٹ میں قرارداد منظور ہونا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ انتخابات بر وقت نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین سینٹ اور قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے اراکین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل راولپنڈی میں کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر سماعتیں ہوئی ہیں۔ 17 امیدواروں کی اپیلز منظور ہو گئی ہیں، جبکہ فواد چودھری کی اپیل پر سماعت منگل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن ٹریبیونل راولپنڈی میں کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر سماعتیں۔ سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی، میجر طاہر صادق سمیت 17 امیدواروں کی اپیلیں منظور۔ فواد چودھری کی اپیل پر سماعت منگل تک ملتوی۔ فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد نے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لی۔ ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں قائم الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل نے NA51 سے غلام مرتضی ستی اور عمر نوید ستی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں منظور کر لی۔ NA53 سے کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر راجہ اور روبینہ اجمل راجہ، PP6 سے سعد سراج راجہ، PP10 سے راجہ مبشر رفیق کیانی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ ٹریبیونل نے NA49 اور 50 سے ناز طاہر صادق،
NA-55 से मलिक ताहिर महमूद, PP-4 से तस्नीम मलिक और मलिक इमरान, PP-15 से बशारत राजा, PP-17 से साबिक सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज और तारिक महमूद मुर्तजा की अपीलें मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअतों का सिलसिला 10 जनवरी तक जारी रहेगा। उधर कराची में भी अपने ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी रहा। NA-242 में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी की अपील के खिलाफ समाअत हुई। रिटर्निंग अफसर और मियाँ शहबाज शरीफ को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। तफसील के लिए रिपोर्ट। अपेलेट ट्राइब्यूनल में अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी। अपेलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर और मियाँ शहबाज शरीफ को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद मंदोखेल और PTI के हसनैन अली चौहान ने अपील दायर की है। इलेक्शन अपेलेट ट्राइब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के मजीद 4 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए, जिनमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के साहबजादे अवाब अलवी और खुर्रम शेर जमान के NA-241 से कागजात मंजूर कर लिए गए। इनके अलावा NA-234 से फहीम खान और NA-245 से अताउल्ला खान के कागजात मंजूर। रिटर्निंग अफसर का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। PTI के उम्मीदवार हसनैन अली चौहान, अमजद आफरीदी, सुबहान साहिल, फिजा जिशान और हालत से मखदूम फजल भी अहल करार पाए। इससे कबल इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कौमी असम्बली के हल्का 231, PS 91 के उम्मीदवार आफ्ताब बकाई और PS 85 के उम्मीदवार मोहसिन पहवर की अपीलों पर समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन से 8 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। NA-224 के आजाद उम्मीदवार अरबाब मोहम्मद मेमन, PS 93 रियाज अहमद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, PS 106 पीपल्स पार्टी के रऊफ अहमद, NA-234 MQM पाकिस्तान के मोईद आमिर पीरजादा के कागजात मंजूर कर लिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि जहां से मर्जी करारदाद पास करा लें, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अब UN और OIC की करारदाद का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। कुछ सियासतदान ऐसे बताते हैं जैसे लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और सड़कें सोने की हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। आइए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है, फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो मेरा ख्याल में हम सब जस्टिस फाइज ईसा साहब के इस बात पे एतमाद करते हैं। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस होंगे, पाकिस्तान के अवाम को वो मौका मिलेगा अपना वोट का हक इस्तेमाल करके वो अपने ही हुकूमत बनाएं। फिर उनकी मर्जी, जो भी पाकिस्तान के अवाम का फैसला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल करेगी। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस देना चाहिए कि हम इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकें। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि वक्त पर इलेक्शन होंगे। चंद सेनेटर्स ने करारदाद पास की, इसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। पीर वाले दिन टिकट्स वाला मसला हल हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर ने यह भी वाज़ेह किया कि हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं और किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मुल्क अवाम और कानून की बालादस्ती के साथ है। इलेक्शन की हम हर सूरत चाहिए कि इनेकाद हो। जिस तरीके से सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिस पे हमारा मौक़िफ़ भी आ चुका है कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। हमें भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इलेक्शन होंगे। अदालती उमूर से खबर शामिल करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। लापता अफराद कमीशन को 10 रोज़ में अपने कवायद से मुतालिक तफसीलात जमा कराने की हिदायत की गई है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कमीशन से रिपोर्ट आ जाने के बाद हतमी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी जारी कर दिया है।
तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लापता अफराद कमीशन को 10 रोज में तफसीलात अटॉर्नी जनरल को देने की हिदायत। फैसल सिद्दीकी केस में अदालती मुआविन मुकर्रर। मजीद समाअत तलब करदा दस्तावेजात मिलने के बाद हो। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि एतजाज एहसन की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म किए जाते हैं। एतजाज एहसन की दरख्वास्त पर अदालत सिर्फ लापता अफराद तक महदूद रहेगी। सियासी वाबस्तगी रखने और वापस आ जाने वालों के मामले को अदालत नहीं देखेगी। पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी किस्म के तशद्दुद की इजाजत नहीं। नोटिस में लाया गया है कि अदालती छुट्टियों में पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। हुक्मनामे में सेनेट से लापता अफराद बिल गुम होने का भी जिक्र किया गया है। अदालत ने कहा कि इल्जाम है कि एक वफाकी वजीर की कोशिशों को उसी पार्टी के वोटों से मुंतखब सेनेट चेयरमैन ने नाकाम बनाया। ये बहुत संगीन इल्जाम है जो सादिक संजरानी पर लगाया गया है। सादिक संजरानी को इस केस में दरख्वास्त गुजार ने फरीक नहीं बनाया। जब तक दरख्वास्त गुजारों ने फरीक नहीं बनाते उन इल्जामात की समाअत करना मुनासिब नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुल्फिकार भुट्टो की सजाए मौत से मुतालिक सदारती रेफरेंस का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की USB और CD भी जमा करवा दी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 फरवरी को रेफरेंस पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत से मुतालिक सदारती रेफरेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 फरवरी को रेफरेंस पर समाअत करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से तहरीरी जवाब वकील फारूक एच नाइक ने जमा करवाया। तहरीरी जवाब में मुख्तलिफ किताबों के हवाला जात दिए गए। तहरीरी जवाब में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात, इंटरव्यू की USB और CD भी जमा करवा दी गई। तहरीरी जवाब में इंटरव्यू का अंग्रेजी और उर्दू ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवाया गया है। बानी PTI को असम्बली रुकनीत और पार्टी चेयरमैनशिप से हटाए जाने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर को फरीक बनाया गया है। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। बानी PTI को चेयरमैनशिप से हटाने का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन का 6 दिसंबर 2023 का फैसला कलअदम करार देने या मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत होने के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोई भी अदालत मुकदमा वापस न करने पर इसरार नहीं कर सकती। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ज़ेर समाअत तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी गई है। जमानत की दरख्वास्तों पर भी समाअत मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फरहद शहजादी, मिर्जा शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार दे दिए गए। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी तकसीम न हो सकी। जमानत की दरख्वास्तों पर भी समाअत मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंसेस की समाअत की। बैरिस्टर गोहर अली खान और बैरिस्टर उमैर नियाजी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर ने गैर हाजिर 6 मुल्जिमान के वारंट की अदम तामील से मुतल्लिक बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत ने फरहद शहजादी, मिर्जा शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया, जबकि हाजिर मुल्जिमान बानी PTI और बुशरा बीबी को रेफरेंस की नकूल ना फराहम की जा सकी। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म और जमानत की दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने चेयरमैन PTI की बानी PTI से मुलाकात और बानी PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अब खबर ये है, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ई-रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि आवाम को फ्रॉड से बचाने के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। अब तक 2,21,000 ई-रजिस्ट्रीज हो चुकी हैं। अब तक 2,21,000 ई रजिस्ट्रियाँ हो भी चुकी हैं। लाहौर में भी टोटल मैनुअल रजिस्ट्री को बैन कर दिया है और सिर्फ ई रजिस्ट्री हो रही हैं। 11 सेंटर्स पूरे पंजाब में इस तरह के बनने जा रहे हैं। लोग टैक्स को चोरी करने के कई तरीके निकालते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के साथ फ्रॉड होने वाला सारा तरीका ख़त्म हो जाएगा और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में इजाफा होगा। तनकीद का मुझे इशू नहीं, अगर मैं तनकीद के ऊपर बैठ जाता ना तो मैं कोई काम ना कर सकता। मैं उस तनकीद से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।